हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी और ये चल रहा है हमारा आइल्स रीडिंग सीरीज का डे 3। अगर आपको नहीं पता आइल्स रीडिंग सीरीज क्या है, तो आइल्स रीडिंग सीरीज है जिसमें हम रोज आइल्स रीडिंग के अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स पे फोकस कर रहे हैं, सो दैट आइल्स की रीडिंग में आप कभी दोबारा फेल नहीं होगे। आज है हमारा डे 3 और आज वाले डे पे हम फोकस कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो अब आप जल्दी से देखो कि कैसे मैंने अपना सुपर मेथड RKLM यूज करके किस तरीके से इतने डिफिकल्ट फिलअप्स को भी बहुत ही इजी मैनर में करके आपको दिखाया है। अगर आपको वोकैबुलरी कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं भी समझ आते ना, तब भी आप ये इजीली कर पाओगे। तो प्लीज वॉच द वीडियो अंटिल द एंड। हाँ जी, सो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? टुडे इज द डे 3 ऑफ दिस रीडिंग सीरीज। इसके बाद आइल्स रीडिंग में कभी फेल नहीं होगे, एंड आई प्रॉमिस दैट। कल और परसों जो डे 1 था, डे 1 पे मैंने आपको कराया आइल्स की रीडिंग की हेडिंग्स, डे 2 पे कराया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और आज वाले डे पे हम फोकस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। मुझे पता है कि आप सब लोगों को फिलअप्स में प्रॉब्लम आती है, और अगर मैं इस फुल टेस्ट की बात करूँ ना, कैम्ब्रिज की, इसमें तीनों पैसेजेस में फिलअप्स हैं। बट ये जो पर्टिकुलर है ना, पैसेज नंबर 2, इसके फिलअप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने यही वाले लिए हैं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। जैसे कि कल अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है, तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था RKLM मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और RKLM मेथड के बिना अगर आप सोचो कि आइल्स रीडिंग कर लोगे या आइल्स लिसनिंग कर लोगे, तो बहुत ही मुश्किल होगी। मेन मोटिव हमारा ये है कि हमने आइल्स रीडिंग में फेल नहीं होना है, चाहे हमारे 6 बैंड ही आ जाए, चाहे 6.5 आए, 7 आए। जीटी वाले लर्नर्स हो तो बैंड 7 चाहिए, और अगर आइल्स के एकेडमिक लर्नर हो तो यू नीड बैंड 6। सो वी नीड टू स्कोर, वी नीड टू गेट आवर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स, और उसके लिए ये फॉलो करना ही पड़ेगा। Just a quick revision of what RKLM is. R is read one question at a time. K is circle two, maximum 3 keywords or phrases at a time. L is locate those keywords in the passage, and after locating, read 3 to 4 lines. Then M is match the meaning in order to get the correct answer. So be it fill in the blanks, be it true, false, not given, be it any other questions like such, fill in the blanks, true, false, not given, fill in the blanks with summary, with synonyms, or summary completion, form completion, short question answers. All the questions like such can be done easily with using the same method. Now, let's get started with the first one. Here they're clearly saying choose one word from the passage for each answer. The database that Ogilvy and her team has compiled sheds light on the lives of a range of individuals. Now there here we have some proper nouns, जैसे Ogilvy. We do not know the correct pronunciation, whether it's a Russian name or it is a Swiss name, कैसा name है, we do not know, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे nobody is checking your pronunciation for the particular name, and nouns can be pronounced differently. Our main motive here is to focus on the keywords. If you are not able to understand every single meaning or every meaning here in this line, there is no problem. हर एक वर्ड के मीनिंग को समझने की जरूरत भी नहीं है, हमें खाली मेजर कीवर्ड्स पे फोकस करना है. So the database that Ogilvy and her team has compiled sheds light on the lives of a range of individuals. So database Ogilvy as well as those of their dash. So Ogilvy database, ठीक है, shed lights on the lives of range of individuals. Okay, lives of range of individuals as well as those of their. Okay, so we know as well as those of their, we are going to get some plural form here over a 300-year period. So our major keywords are database, Ogilvy, 300-year. Let's find out the same in the passage. We'll always start with the first paragraph. We are going to just quickly look at the word database and 300-year-old. We have not found it here. Next, 300-year-old Ogilvy. No Ogilvy here. Passage 3, again no.
No, passage D, 300 years. We found it here. Database, we found it here. Full demographic reconstruction of the people who lived in these two German communities. Okay, so they clearly said individual lives have unfolded before their eyes. Stories like that of 24-year-old Anna Regina and this, who were chastised, okay, in 1707 for reading books in church instead of listening to the sermon. तो वो सरमन को नहीं सुन रहे थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट कुछ भी प्रेयर से रिलेटेड स्पीच होती है, कुछ वो बता रहे होते हैं, वो नहीं सुन रहे थे, देवर रीडिंग बुक्स. बट मेजर हमारा कीवर्ड क्या है यहाँ पे, उन्होंने बोला था डेटाबेस किस चीज का है. सो यहाँ पे वो बता रहे हैं, फर्स्ट लाइन ही दोबारा पढ़ो. Ogilvy and her team have been building the vast database of material possessions. किस चीज का डेटाबेस? जो मटेरियल, जिस चीज को वो ओन करते थे, तो लोग किस किस चीज को ओन करते थे, उसका डेटाबेस, on top of their full demographic reconstruction of the people who lived in these two German communities. So जो लोग जर्मन कम्युनिटीज में, these two German communities में रहते हैं, उनके material possession का डेटाबेस. We can follow the same people and their descendants. We can follow the same people. हम ये same लोगों को फॉलो कर सकते हैं, मतलब we can follow the same people and their descendants and those of their descendants across 300 years of educational and economic change. जो भी उनके descendants रहे, आगे आने वाली है ना, या पीछे वाले है ना, जो भी उनके रहे, तो उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं. उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उनकी फैमिली से रिलेटेड, तो यहाँ पे मेंशन्ड है those of their descendants. So the correct answer clearly here is descendants. So we got our first answer. Over a 300-year-old, ओके, पीरियड, ये उन्होंने बता दिया. अब आगे आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एना रेजिना एंड मैगडेलेना रेटमिलरन. ओके, सो नेम्स है. नेम्स, जब भी किसी पर्सन का नेम आ जाता है, किसी थिंग का नेम आ जाता है, किसी इवेंट का नेम आ जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बस इन्हीं दोनों नेम्स के बेसिस पे आपको नेक्स्ट आंसर की लोकेशन मिलने वाली है. वर रेप्रिमांडेड फॉर, ठीक है, देवर रेप्रिमांडेड. रेप्रिमांडेड होता है कि बहुत ज्यादा ऑफिशियल क्रिटिसिज्म मिलना उन्हें, वो क्रिटिसाइज करा गया था उन्हें. क्यों क्रिटिसाइज करा था? फॉर रीडिंग वाइल दे शुड हैव बीन पेइंग अटेंशन टू द, तो वो कह रहे हैं वो रीड कर रहे थे कुछ, वाइल दे शुड हैव बीन, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए था, दे शुड हैव बीन पेइंग अटेंशन टू अ डैश. सो कोई नाउन आएगा इधर, किसी चीज की तरफ अटेंशन पे करनी थी, तो वो वहां पे उन्होंने क्लियरली बताया था. हमने जब नेक्स्ट लाइन भी पढ़ ली थी तो हमें पता चल गया था कि वो यही बात कर रहे हैं. Stories like that of 24-year-olds Anna Regina and Magdalena. Okay, so we found the location. 3 lines पढ़ो ध्यान से. Who were chastised. Okay, in this. Criticized, chastised, reprimanded. किस चीज के लिए? For reading books in church instead of listening to a sermon. So क्या है? Correct answer is sermon here. So इस तरीके से we have to find out the answer. So सबसे पहले go through the first sentence, ठीक है. think of the suitable word option, think of the suitable option, ठीक है. word जो हमारी वर्ड चॉइस है यहाँ पे, वी हैव टू थिंक ऑफ दैट वर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे वर्ड फॉर्म हमने सोच ली थी कि नाउन आएगा, वहां पे पता चल गया था प्लूरल आना है कुछ और नाउन आना है, तो बस वो सोच लो. देन फाइंड द लोकेशन, रीड कीवर्ड्स, लोकेट मीनिंग, दैट्स इट. सो उन्होंने वहां पे क्लियरली बोला था सर्मन. So we have got our third answer as well. Now proceeding further, as a punishment she was later given a dash. अब as a punishment, major keyword क्या है यहाँ पे? punishment. She was later given a dash. कुछ मिला था उसे, क्या मिला था? कोई चीज मिली थी, कोई पनिशमेंट मिली थी, कुछ तो मिला होगा ना, तो नाउन आएगा ना कोई यहाँ पे. एज अ पनिशमेंट शी वॉज लेटर गिवन अ डैश. सो इस तरीके से ही एज अ पनिशमेंट उसे क्या मिला था? शी वॉज लेटर गिवन अ डैश. क्या मिला था वो देखो यहाँ पे. This tells us they were continuing to develop their reading skills at least a decade after leaving school, explains Ogilvy. The database also reveals the case of Juliana. तो किसी पर्सन का नेम आ गया, 50-year-old spinster living in small black forest, ठीक है, who was reprimanded in 1752 by the local weavers for weaving cloth and comic wool counter to
गिल्ड ऑर्डिनेंस। सो वो गिल्ड ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग वो काम कर रही थी जो वो चाहते ही नहीं है ना। दिस इज व्हाट दे सेड। तो उसको हुआ क्या था, रेप्रिमांडेड। आगे देखते हैं। व्हेन जूलियाना कॉन्टिन्यूड, जब उसने कॉन्टिन्यू करा यही जॉब्स लेना रिजर्व, जो कि मेल गिल्ड मेंबर्स कर सकते थे, मेल आर्टिसंस कर सकते थे, वो सेम जॉब्स वो करने लग गई, तो शी वाज समन्ड बिफोर द गिल्ड कोड एंड टोल्ड टू पे अ फाइन। सो शी वाज व्हाट, शी वाज गिवन अ फाइन, शी वाज टोल्ड टू पे अ फाइन। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है शी वाज लेटर गिवन अ फाइन। ओके, what she was later given a fine, उसे फाइन मिला था बाद में कि फाइन उसे पे करना पड़ेगा। ओके, केसेस लाइक दिस illustrate how the guilds could prevent, केसेस ऐसे शो करते हैं कि how the guilds could prevent dash, क्या कुछ प्रिवेंट कर सकते थे वो, that the guilds could prevent dash and stop skilled people from working, skilled people को stop कर सकते थे काम करने से, and could prevent dash, उन्होंने ये चीज बोली। cases like this illustrate how the guilds could prevent dash and stop skilled people from working। so यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो we'll get the cases like this। ठीक है, शो क्या शो करता है, आ गया ना यहाँ पे, guilds not only prevented people from using their skills but also held back even the simplest industrial innovation। so वो क्या कर रहे थे, डोमिनेंस थी ये गिल्ड की। ठीक है, केसेस लाइक दिस क्या शो करते हैं, केसेस लाइक दिस शो करते हैं कि गिल्ड की क्या थी, डोमिनेंस थी, और वो क्या कर रहे हैं, देवर, ठीक है, दे हेल्ड बैक इवन द सिंपलेस्ट इनोवेशन। सो वो किस चीज को हेल्ड बैक कर रहे हैं, किस चीज को स्टॉप कर रहे हैं, वहां पे यही तो था ना, प्रिवेंट कर रहे हैं। हेल्ड बैक का सिनोनिम यूज करा है यहाँ पे, प्रिवेंट, हेल्ड बैक इज द सिनोनिम ऑफ प्रिवेंट। सो वो क्या प्रिवेंट कर रहे थे, इनोवेशन प्रिवेंट कर रहे थे। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, मीनिंग को मैच करना है। फर्स्ट स्टेप इज रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम। सो पहले 19th की फुल स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बाद कीवर्ड सर्कल करके कीवर्ड्स लोकेट करो और फिर मीनिंग को मैच करो, तभी आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। सो इस तरीके से आपने करने हैं सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और ये वाले जो फिलअप्स है ना, ये यूजुअली मेरे तो भाई जितनी भी मैंने सेशंस लिए लर्नर्स को टफ लगे, तो मुझे पता है कि आपको भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप अभी राइट अवे आफ्टर दिस सेशन फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको जिस तरीके से मैंने समझाए हैं इस चीज ने आपको हेल्प करा है या नहीं। अगर नहीं भी करा तो क्रिटिसाइज ही कर देना, रेप्रिमांड ही कर देना, सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि कहीं पे कोई कमी रह गई है। ठीक है, सो अब मैं आपको डे 4 वाले सेशन में मिलूंगी जिसमें मैं आपको कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड अगर आपको और भी किसी मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे से पर्सनलाइज क्लासेस ले सकते हो। बिकॉज जब तक आपको बेसिक्स एक बार पता चल गए हैं, उसके बाद स्कोर इम्प्रूव करना है, आइल्स क्लियर करना है, 1 से 2 मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू नीड पर्सनल गाइडेंस ओनली। एंड पर्सनल गाइडेंस आइल्स में डीजी से अच्छी कोई नहीं दे सकता। सो डू ज्वाइन आवर कोर्स। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं। पर फिर भी कोई भी डाउट रह गया है ना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो एंड मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छी तरह वो समझा पाऊं, आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। और अब हम मिलेंगे कल, जो कि है हमारा आइल्स रीडिंग सीरीज का लास्ट डे। इसके बाद आइल्स रीडिंग में कभी फेल नहीं होगे, तो लास्ट डे मिस मत करना। और अगर आपने प्रीवियस वाले 2 दिन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।